Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. Today we are going to take up the solution to test assignment number 13. The topics to this test are blood relation, log, coding and decoding, sequence and series. Okay. So what I would like to tell you here is that approximately from blood relation every year 2 to 3 questions are asked. Let's say average 2 questions. From Slok 2 questions or 1 question is asked, let's say 1 question. Coding, decoding 4 questions, sequence and series 4 questions. So together 4 and 4, 8 to 10 and 11. So 11 to 12 questions are asked from this topic. So I think you must revise this topic very thoroughly to increase your chances of clearing the CSAT. Okay, the questions to these topics are very easy, not that difficult. You can revise these topics by using these assignments also and practicing PYQs, and the videos I have made separately on these topics. The way in which I have made the videos is like I have taken up the questions, okay, and then I have made you solve these questions. In every video there are 15 to 20 questions taken up and you are made to solve them. So in that way you can revise that easily, or you can revise it on your own also, but you should do this topic because it gives you 12 to 11 questions. Okay, so with this we would like to begin. So let's start with question number 1. Okay, the family gathering, there are mm, two males who are grandfathers, four males who are fathers. In the same gathering, there are two females who are grandmothers, four females who are mothers. There's at least one grandson or a granddaughter present in this gathering. There are two husband-wife pair in this group. These can either be grandfather, grandmother, or father and a mother. The single father whose wife is not present has two grandsons and a son present, and a single grandmother whose husband is not present has two granddaughters present. A grandfather or grandmother present with their spouses does not have any grandson or granddaughter present. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि जो दो पेयर हैं हस्बैंड वाइफ के यहाँ पर आपके पास, ठीक है, जो दो पेयर हैं आपके पास हस्बैंड वाइफ के यहाँ, उसमें क्या हो रहा है कि एक तो आपका ग्रैंड फादर वन, GF1 लिख लो उसको, और ग्रैंड मदर वन होगी, एक होगा कोई फादर वन और एक मदर वन, ठीक है, ये होंगे दो पेयर। तो ये तो आपके पास अब क्या हो गया कि टोटल कितने मेल होने चाहिए, दो मेल, मतलब मेल्स जो हैं ग्रैंडफादर वाले दो होने चाहिए और फादर वाले फोर मेल होने चाहिए गैदरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक मेल आ गया है ऐसे वाला, और एक ग्रैंड मदर वाली आ गई है, और ये तो टोटल ग्रैंड मदर तीन बच गई, एक और बच गई जो आ सकती है, और आपके जो ये फादर हैं ये तीन बच गए, मदर भी तीन बच गई जो और आ सकती है। अब देखिए, एक तो ये हो गया। अब इसमें से मैरिड वाले में से दो ही पेयर बन सकते हैं ऐसे वाले, ये दिया ही हुआ है पहले से, ठीक है। तो अब अगला क्या होगा आपके पास कि जो अब ये ग्रैंडफादर टू आएगा, ग्रैंडफादर टू आएगा, अब यहाँ लिखा है अगर सिंगल ग्रैंडफादर आता है, इसकी वाइफ नहीं है, तो उसके साथ दो ग्रैंडसन होंगे, यानी कि GS1 कॉमा GS2 ले लीजिए, एंड अ सन होगा, और एक सन प्रेजेंट होगा उसके साथ, ठीक है। अब वो फादर टू मान लीजिए प्रेजेंट है, ठीक है, फादर टू। अब जो ग्रैंड मदर टू आपके पास आएंगी, ठीक है, ग्रैंड मदर टू आपके पास आएंगी, उनके साथ क्या था कि अगर जो सिंगल ग्रैंड मदर है उसका हस्बैंड नहीं है तो उसके बाद दो ग्रैंड डॉटर आएंगी, तो आपको मान लीजिए GD1 और GD2 मान लीजिए इसे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम काउंट करते हैं इसके अंदर कि क्या है, देखिए। अब ये जो हैं ये बिना ग्रैंडसन के आएंगे, ग्रैंडफादर वन और ग्रैंड मदर वन, और ये फादर वन फादर मदर वन आ गए, जो ये जो पेयर बने थे। तो मतलब कितने आप ग्रैंडफादर वाले दो होने चाहिए ना, यहाँ दिखा है कि टू मेल्स हुआ ग्रैंडफादर, तो ये हो गए। अब दूसरे जो इसमें मेल हैं हु आर फादर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द गैदरिंग, सबसे कम नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग में कितने प्रेजेंट हुए आपके पास। अब देखो काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए, ये दो लोग हो गए, ये चार हो गए, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, 10, ये 11। तो एक आपकी यहाँ मदर कोई आ सकती है जो M3 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो अगर फादर जो मदर टू आएंगी तो मतलब फिर से एक पेयर बन जाएगा, पर एक ही दो ही पेयर पॉसिबल है मैरिड कपल के, ठीक है। तो इसमें आपके पास टोटल जो है वो
12 लोग हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जिसके अंदर आपके फादर कितने हो गए, देखिए फादर हो गए। ये क्या था ना कि गैदरिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो 4 मेल्स हैं वो फादर हो। तो ये भी फादर है, ग्रैंडफादर 1, और ये भी फादर है, ये ग्रैंडफादर 2 भी फादर है, और ये भी फादर है। तो 4 फादर हो गए, 1 2 3 एंड 4। ऐसी 4 मदर हो गई, ये ग्रैंड मदर 1 और मदर 1, और यहाँ पर ग्रैंड मदर 2 थर्ड थर्ड हो गई, और ये मदर 3 होगी फोर्थ। तो ये सेटिस्फाई हो गया कि दो तो ग्रैंडफादर होने चाहिए, हो गए, ये ग्रैंडफादर 1 और ग्रैंडफादर 2। चार मेल होने चाहिए जो फादर हो, तो ये फादर 1, फादर 2, फादर 3, फादर 4, और ठीक है। और सिमिलरली ये कह रहा था कि 2 फीमेल ऐसी हो जो ग्रैंड मदर हो, तो ये ग्रैंड मदर 1 और ये ग्रैंड मदर 2 आपकी। और 4 फीमेल्स होनी चाहिए जो मदर हो, तो मदर 1, मदर 2, मदर 3, मदर 4। ये सेटिस्फाई हो गए। तो इसके बाद आपके ये थे, अब आप टोटल काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मिनिमम आदमी हो गए 12 हो गए इसके अंदर। तो इसका आंसर है आपका बी, 12, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, अभय, बंटा, कैथी, दीपक, एमिली एंड फातिमा, देर आर 3 मेल्स एंड 3 फीमेल, 3 मेल है 3 फीमेल है, जिसमें से 2 मैरिड कपल है। कितने मैरिड कपल है, 2, एंड 2 पर्सन आर अनमैरिड। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक। एमिली हु लाइक्स, अब देखो कुछ मत करो, सबसे पहले आप टेबल बनाना सीखो इसके अंदर। अगर आप टेबल बना लोगे आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। या सबके नाम लिख लो पहले तो, कौन कौन से हैं। अभय है, ठीक है, बंटा है, कैथी है, दीपक, और आपकी एमिली, और ये थी फातिमा, FAT। फातिमा का FAT लिख लो, या फिर इनके आप ऐसे बना लीजिए, और यहाँ पर आप इनका लिख लीजिए। अब इनके क्या क्या होंगे, इनके कुछ सेक्स होंगे, मतलब ये मेल या फीमेल है, वो लिखिए यहाँ पर, ठीक है। फिर आपके लिखिए कि ये मैरिड हैं या नहीं है। फिर ये कौन सी ड्रिंक पसंद करते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक जो थी, कौन सी इनको पसंद है। फिर ये किसके सन हैं, या ये किसके डॉटर हैं, ये लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब शुरू करते हैं, वन बाय वन डालते जाएंगे, आंसर आपका आता जाएगा, ठीक है। ईच वन ऑफ देम लाइक डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक, मतलब सबको डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक पसंद है। एमिली हु लाइक्स कोक, पहले तो एमिली के पास चलो, उसको पसंद कौन सी है, कोक पसंद है। इज द मदर इन लॉ ऑफ अभय, तो वो अभय की क्या है, मदर इन लॉ है। इसका मतलब एमिली मैरिड हो गई, और अभय भी मैरिड हो गया क्योंकि उसकी मदर इन लॉ है, ठीक है। हु इज वाइफ ऑफ कैथी, पर जो अभय है वो कैथी की वाइफ है, तो कैथी क्या हो गया, कैथी हो गया आपका मेल, और अभय क्या हो गया आपका फीमेल। तो एक मैरिड कपल तो आपको मिल गया जो है अभय और कैथी, और दूसरा एमिली के साथ होगा कोई। अब वो देखते हैं कौन होगा, ठीक है। अब इसका मतलब एमिली क्या है, वो मदर इन लॉ थी, तो वो फीमेल हो गई। तो आपके पास याद रखिए 3 मेल हैं 3 फीमेल हैं, इन चीजों को याद रखते चलिए, आपका आंसर निकलता जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हम पहुंच गए। दीपक इज द फादर ऑफ फातिमा, जो दीपक है मतलब वो मेल हो गया, और फातिमा पता नहीं है आपको सन है या डॉटर है, तो ये इसका या तो यहाँ पर ये डॉटर होगी या सन होगा, ठीक है, दीपक का। अब देखो अभय और कैथी मैरिड है, तो दो ही मैरिड कपल है ना, तो इसका मतलब दीपक किससे मैरिड है आपका, एमिली से, तो ये मैरिड हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैथी है वो किस किस की बच्ची हुई, कैथी जो है वो किस किस का बच्चा हुआ, वो सन हुआ दीपक और फातिमा का, ठीक है। और ये जो फातिमा, वो सॉरी दीपक और एमिली का, और जो फातिमा है वो भी सन है या डॉटर है पता नहीं अभी इनकी क्या है, वो देखते हैं अभी आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एंड ही डज नॉट लाइक थम्स अप और पेप्सी, इस जो दीपक है इसको ना थम्स अप पसंद है, थम्स अप पे कट कर दो, और पेप्सी पे भी कट कर दो इसकी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बंटा लाइक्स लिम्का, एक बंटा नाम का कोई आदमी है, उसको लिम्का पसंद है, ठीक है। आगे चलो, अब लिम्का पसंद है। एंड इज सिस्टर ऑफ फातिमा, जो ये बंटा है किसकी सिस्टर है, फातिमा की, तो ये भी ये फीमेल हो गया। इसका मतलब 3 मेल 3 फीमेल से, मतलब कि फातिमा आपका मेल हो गया, मतलब फातिमा जो है वो सन हो गया इन दोनों का, एमिली और दीपक का, और ये बंटा भी सन हो गया दीपक और एमिली का, ठीक है। कह रहा है ना यहाँ पे, बंटा लाइक्स लिम्का एंड सिस्टर ऑफ फातिमा हु लाइक्स स्प्राइट, फातिमा को पसंद है स्प्राइट आपके पास, ठीक है। कैथी डज नॉट लाइक पेप्सी, कैथी को पेप्सी पसंद नहीं है, तो कैथी को भी पेप्सी पसंद नहीं है भैया, काट दो यहाँ से।
ठीक है। अब जहां तक अब आगे फेंटा एक अंदर ड्रिंक है, जो कि आप देखिए, लिम्का, ना लिम्का, ना कोक, ना स्प्राइट, और ना थम्स अप, ना पेप्सी, ये सब दीपक को नहीं पसंद हो सकती। तो अंदर ड्रिंक एक फैंटा बची है, तो दीपक मतलब फैंटा लाइक करेगा। ठीक है। अब ये पेप्सी नहीं लाइक करता, कैथी, तो पेप्सी कौन करेगा? अभय करेगा। तो एक और ड्रिंक बच गई जो थम्स अप है, तो ये थम्स अप कर लेगा, थम्स अप। ठीक है। यहाँ तक हो गया आपके पास सारा का सारा। अब आगे चलते हैं। हाउ इज फातिमा रिलेटेड टू एमिली? अब देखो, आपको पता ही था कि दीपक और एमिली मैरिड है, और फातिमा उनका क्या है? सन है। ये पता लगी गया यहाँ से। तो फातिमा इज द सन ऑफ एमिली, तो बी आंसर आ गया। चलिए आगे, खत्म। अब एक सिलॉग का क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सिलॉग में कुछ नहीं करना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो फैक्ट होते हैं, उन फैक्ट्स को भूल जाइए बिल्कुल। जो इसके स्टेटमेंट्स कह रहे हैं सिलॉग के, आपको वो ही मानना है। ठीक है। अब शुरू करते हैं। सम बॉयज आर स्कॉलर्स, सम टीचर्स आर बॉयज, ऑल स्कॉलर्स आर ऑब्जर्वर। अब देखिए, ऑल स्कॉलर्स आर ऑब्जर्वर का मतलब है कि जो सारे स्कॉलर्स हैं वो ऑब्जर्वर के अंदर आएंगे। ठीक है। तो ये स्कॉलर्स आ गए आपके ऑब्जर्वर के अंदर, ये आपका ऑब्जर्वर। ठीक है। सारे स्कॉलर ऑब्जर्वर के अंदर आ गए, क्योंकि सारे स्कॉलर क्या है? ऑब्जर्वर है। ऑल स्कॉलर ऑब्जर्वर। सम टीचर्स आर बॉयज। ठीक है। सम बॉयज आर स्कॉलर। अभी कह रहे हैं सम बॉयज जो है वो स्कॉलर हैं। तो ये जो कुछ बॉयज हो गए आपके पास, ये BOYS, ये आपके क्या है? स्कॉलर है, ये वाला एरिया। ठीक है। अब आगे आता है सम टीचर आर बॉयज। अब कुछ टीचर जो हैं वो बॉयज हैं, TEACHER, वो बॉयज हैं। ठीक है। तो ये वाला। अब आगे चलते हैं। सम स्कॉलर्स आर बॉयज, सम स्कॉलर आर बॉयज, डेफिनेटली जो ये वाला एरिया है आपका। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन ठीक हो जाता है। सम स्कॉलर्स आर नॉट बॉयज, वी कैन नॉट से कि कुछ स्कॉलर बॉयज हैं या नहीं है, हम नहीं कह सकते, हमारे पास कोई डेफिनेट इसका वो नहीं है प्रूफ। मे बी और मे नॉट बी, जहां पर मे बी और मे नॉट बी आ जाता है, अगर ये मे बी कहता, मे बी सम स्कॉलर्स आर नॉट बॉयज, तो हम राइट मान सकते थे। पर अगर हमें, हमारे पास कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है, तो हम इसको रॉन्ग मानेंगे जब हमारे पास क्लियर कंक्लूजन नहीं है। तो सम ऑब्जर्वर्स आर बॉयज, सम ऑब्जर्वर्स आर डेफिनेटली बॉयज, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, ये ऑब्जर्वर और बॉयज में कॉमन आ रहा है। ऑब्जर्वर बॉयज का कॉमन एरिया है ये वाला, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ शेड करके। ये ऑब्जर्वर और बॉयज का कॉमन एरिया है, तो यहाँ बिल्कुल ये ठीक स्टेटमेंट है आपकी। सम टीचर्स आर स्कॉलर्स, सम टीचर्स आर स्कॉलर्स, वी कैन नॉट से दैट क्लियरली, मे बी दे आर, मे बी दे आर नॉट, तो ये कट जाएगा। सो आपका 1 और 3 में से कोई सही है, 1 और 3 दोनों सही है मतलब। तो ये कह रहा है इधर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज। ठीक है। या तो 1 या 2 में से कोई एक, और 3 सही है। तो 1 और 3 तो सही है आपका। तो वन इसमें से कह रहा है या तो 1 या 2 सही है, या और उसके साथ 3 भी सही है, तो ये आपका सी आंसर हो गया इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंक्लूजन। ऑल टीचर आर प्रोफेसर, ऑल प्रोफेसर आर रिसर्चर, ऑल रिसर्चर आर कंसल्टेंट। जब आप ऐसे देखते हो ना कि ऑल, ऑल वाला जब जिसके भी अंदर होगा उसके ऐसे सर्कल्स बनाते जाओ, तो जहां भी ऑल है मतलब वो किसी एक उस सेट के अंदर आएगा। जैसे सारे रिसर्चर क्या है? कंसल्टेंट है। तो अब कंसल्टेंट सबसे बड़ा हो गया, कंसल्टेंट। ठीक है, कंसल्टेंट हो गया। कंसल्टेंट के अंदर सारे रिसर्चर आ रहे हैं ना, ऑल रिसर्चर कंसल्टेंट बिकॉज। तो सबसे बड़ा आपका सब सेट हो गया कंसल्टेंट, उसके अंदर रिसर्चर। अब सारे प्रोफेसर रिसर्चर है, मतलब जो प्रोफेसर है वो रिसर्चर्स के अंदर आ गए, तो ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर। अब जो सारे टीचर हैं वो प्रोफेसर हैं, तो टीचर जो है प्रोफेसर के अंदर आ गया। ठीक है। और टीचर प्रोफेसर ना, तो सारे तो प्रोफेसरों के अंदर टीचर आएगा। ऐसे ही और प्रोफेसर रिसर्चर, तो रिसर्चर के अंदर प्रोफेसर आएगा। सिमिलरली कंसल्टेंट के अंदर रिसर्चर आ जाएगा। अब आप ये देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन देखिए, सम कंसल्टेंट्स आर टीचर, डेफिनेटली, बिकॉज ये जो टीचर वाला एरिया है ये कंसल्टेंट के अंदर है ना, तो कुछ कंसल्टेंट तो डेफिनेटली टीचर होंगे, तो फर्स्ट सही है। ऑल प्रोफेसर्स आर कंसल्टेंट, ऑल प्रोफेसर आर कंसल्टेंट, बिल्कुल। जो प्रोफेसर वाला एरिया है ये लाई कहाँ कर रहा है? कंसल्टेंट के अंदर, तो ऑल प्रोफेसर आर कंसल्टेंट भी ठीक होगा। सम रिसर्चर्स आर टीचर्स, हाँ, सम रिसर्चर्स आर टीचर, बिल्कुल, क्योंकि कुछ टीचर का जो एरिया है वो रिसर्चर वाले में आपका लाई कर रहा है। ठीक है।
ऑल प्रोफेसर आर टीचर नहीं, क्योंकि प्रोफेसर एक बड़ा सेट है और टीचर उसका छोटा सेट है। टीचर्स प्रोफेसर के अंदर आ रहे हैं, तो ऑल प्रोफेसर आर नॉट टीचर बट ऑल टीचर आर प्रोफेसर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 सही है। तो यहाँ पर तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं बन रही है ऐसी, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 5। आपने देखा होगा पीवाईक्यू जब हमने सॉल्व करते थे सीक्वेंस सीरीज के, तो आपको वही इसी टाइप की सीक्वेंस मिलती है कि ए बी सी डी बी वी, कुछ में ऐसे मिसिंग होगा उसमें, तो इसलिए इसी टाइप की सीक्वेंस आपके लिए ली गई है। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जो आ चुके हैं एमबीए के डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वहां से क्वेश्चंस को लिया गया है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लिखते हैं। पहले जब ऐसी सीक्वेंस आती है कुछ मत करो, सबसे पहले सीक्वेंस को लिख लो आप, ठीक है। सीक्वेंस को लिख लो और कुछ उसमें वर्ड्स जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कुछ उठाकर आप एक आधी बारी पुट एक करके देखें कि कुछ बनता है क्या। जैसे कि आप यहाँ देखो इधर, तो अगर आप यहाँ पे डी ई एफ बना देते हैं पहले, और यहाँ एक एफ डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी एक एफ डालते हैं, तो आपको एक चीज दिखेगी कि ऐसे बन रहा है कुछ डी ई एफ, यहाँ तक देखो, फिर आपका एफ डी ई, अगर आप यहाँ से यहाँ तक चेक करते हो, फिर आप यहाँ से चेक करो, ये बन रहा है ई एफ डी। तो आप देख रहे हो जो आखिरी में आ रहा है वो फ्रंट में चले जा रहा है नेक्स्ट में। जैसे यहाँ पे एफ यहाँ पे लास्ट में था तो यहाँ फ्रंट में आ गया। सिमिलरली जब यहाँ ई आखिरी में था तो नेक्स्ट वाले में ई फ्रंट में आ गया, तो यही हो रहा है। तो अब क्या होगा अगले में कि डी फ्रंट में आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आपका डी आएगा, ठीक है। तो आपका ये डी ई एफ, अगर आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये एफ पीछे था यहाँ, तो एफ आगे आ जाएगा, एफ ई डी आपका, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि अब आपका जो एफ आखिरी में था यहाँ, तो ये पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा एफ ई और आपका डी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एफ, सॉरी एफ डी ई, एफ डी आएगा। ये आपका आ जाएगा यहाँ एफ डी और ई। अब ये ई यहाँ लास्ट में था तो ई पहले आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा ई एफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर आप इनको छोटे छोटे ऐसे पेयर्स में बना लोगे तो यहाँ पे डी आएगा आपका, ये डी यहाँ दिया नहीं हुआ तो इसको नहीं लिखते हैं, तो ऐसा अगला पेयर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, बस इसी हिसाब से इसको आप फिलअप कर दो। तो ये आपका फिलअप हो गया। अब इसमें देख लो ये फिलअप करने के बाद कौन सा ऑप्शन बनता है, ऐसे ई एफ एफ डी एफ ई। आपने ये वाला एफ फिल किया ना, यहाँ यहाँ ये वाला ई फिल किया, यहाँ ये वाला डी फिल किया, यहाँ ये एफ फिल किया, यहाँ एफ ई एफ, यहाँ ई। तो ई एफ एफ डी एफ ई यहाँ कौन से ऑप्शन में बन रहा है देख लो, ई एफ एफ डी एफ ई, तो सी में बन रहा है, तो सी आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज को आप फॉलो करना है आपको, कि जो ऊपर दिया है ना उसको पहले लिख लो, ओ पी ओ स्लैश क्यू ओ पी क्यू स्लैश आर क्यू पी ओ स्लैश पी ओ आर स्लैश ओ। अब देखो पहले ऑप्शन में तो ए वाला दिया, तो ए का तो कोई इसमें यूज ही नहीं आ रहा, तो उसको वैसे ही काट दो आप, और बाकी को पुट अप करके देखते हैं, ठीक है। पहला पुट करते हैं क्यू वाला, कि आपको आप पर पुट करो क्यू पी ओ आर ओ, कोई सीक्वेंस बन रहा है, क्यू ओ पी ओ पी क्यू ओ पी क्यू ओ आर ओ, नहीं ये कोई सीक्वेंस आप देखोगे बन ही नहीं पा रहा है, तो ये वाला भी कट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन पे चेक करो, फिर से लिखो ओ पी ओ स्लैश क्यू ओ पी क्यू स्लैश आर क्यू पी ओ स्लैश पी ओ आर स्लैश ओ। अभी नेक्स्ट ऑप्शन डाल के देखो, क्यू पी आर ओ ओ, देखो क्यू ओ पी ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर क्यू आर 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 क्यू पी ओ ओ पी आर ओ ओ, कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है इससे भी, तो इसको भी काट दो। इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। तो कभी कभी आंसर डी भी हो सकता है, ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसमें पुट करके देख लेंगे। इसमें कोई भी जो आप डाल के देख रहे हो उसमें किसी से भी ये बन नहीं पा रहा, तो इसका आंसर आपका डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर। अब आपको बताया हुआ है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी आपको कोड दिया हुआ है
वो तो उसके नीचे लिखते जाओ। जैसे ये लिखा है इन सर्टेन कोड गॉन इज रिटन एज 5% 2 हैश एंड मेडल इज रिटन एज 4 हैश $3 देन हाउ विल गोल्ड बी रिटन एज। ठीक है, तो जी ओ आपका दिया था जी ओ आपके पास NE। अब जो भी इसका कोड दिया उसके नीचे लिखते जाओ। इसे 5 दिया, इसका इसका दिया परसेंटेज, इसका दिया है 2, इसका दिया है आपके पास हैश। सिमिलरली मेडल का दिया हुआ है MEDAL, तो मेडल का 4 आपका, फिर हैश, फिर 3, फिर आपका डॉलर, और फिर आपका एट द रेट। अब देखते हैं गोल्ड के केस में क्या होता है। GOLD। अब जी का क्या है, जी का आपको 5 दिया हुआ है, 5 लिख दो। ओ का क्या दिया हुआ है, परसेंटेज, तो परसेंटेज लिख दो। एल का क्या दिया हुआ है, एट द रेट, तो एल का एट द रेट लिख दो। डी का क्या दिया है आपके पास, 3 दिया है, जो आपका आ जाएगा 5% एट द रेट 3 है किसी में, 5% एट द रेट 3। तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, if each of the letters in English alphabet is assigned an even numerical value giving a is equal to 2, b is equal to 4, so on, then what would be the total value of the letters of for the word lady when similarly coded। ये कह रहा है कि जैसे a b c d ऐसे हुआ करते थे हमारे पास, e आगे तक z तक, तो इसमें जैसे 1 2 3 4 हुआ करता था, तो इसकी बजाय हमने क्या कर दिया कि a को तो 2 बोल दिया, b को 4 बोल दिया, c को 6 बोल दिया, और डी को क्या बोल दिया, 8। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो भी अल्फाबेट की पोजीशंस पहले थी हमारे पास, उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। उनको 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बस कुछ मत करो। जो एल था वो वैसे कितने पे आता है, 12 पे आता है, तो 12 इंटू 2 कर दो, तो ये 24 हो गया। एल की पोजीशन 24 हो जाएगी। ए का तो दिया ही हुआ है आपको, 2 है पहले से, तो ए 2 हो जाएगा। फिर आपका लेडी में आता है डी, तो डी जो है आपका, डी का आपका पोजीशन होता है क्या, 2 होता है असलियत में, वो सॉरी 4 होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 2 कर दो, तो 8 हो जाएगा। और आपका फिर होता है वाई, वाई आपका होता है सेकंड लास्ट लेटर, तो 25 होगा, तो इंटू 2 कर दो उसे, तो इसकी पोजीशन 50 हो जाएगी। अब इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 50 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 24, ये आपका हो गया 84। तो इसका आपका आंसर आ गया सी, जो कि आपका 84। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। ठीक है, द सर्टन कोड। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है, जब ऐसे लाइन वाले कोड होते हैं तो आप दो सेंटेंसेस को कंपेयर करो। जैसे ये दो सेंटेंस इनको कंपेयर करो, और जो इसके अंदर कॉमन चीज दी हुई है, उनके जो यहाँ पे कॉमन वर्ड यहाँ पे कोड आ रहे हैं उनको लिखते जाओ। अब जैसे इसमें देखते हैं, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड इज इट एस नू टारोगी, रिस्क इज वेरी लो इज इट एस गी गी सी नूमी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, वेरी आ रहा है एक तो, और क्या आ रहा है, रिस्क आ रहा है, तो वेरी रिस्क को लिख लो। वेरी रिस्क के अब कॉमन वर्ड देखो क्या आ रहे हैं इसमें, दोनों में, इसमें जी और जी आई आ रहा है, तो एक तो जी आई आ जाएगा, आपको पता नहीं है अभी भी, और दूसरा आ रहा है एन यू। तो इनमें से एन यू होगा वेरी का, या रिस्क का, या फिर जी आई रिस्क का होगा या वेरी का होगा, अभी पता नहीं है आपको। अब नेक्स्ट दो को कंपेयर करो, इन दो को, इन दो में देखो कॉमन क्या है, रिस्क इज वेरी लो, इसमें है इज दैट ऑल्सो एसोसिएटेड, इसमें इज कॉमन है, बस देखोगे आप तो इन दोनों में सिर्फ इज और इज कॉमन आ रहा है। तो जब इज और इज कॉमन आ रहा है ना, तो अब देखो कि वर्ड इसमें जो कोड है वो कौन सा कॉमन आ पा रहा है, तो इसमें नू मी, तो मी कॉमन आ रहा है, एम आई, तो इसका मतलब इज का आपका हो गया यहाँ पर एम आई, इसको आप एम आई लिख सकते हो। ठीक है, कितना हो गया, इसको आप एम आई लिख सकते हो। अब दो नेक्स्ट टू को कंपेयर करो, इज that also associated is written as Tami Kofu. Inherited risk also damaging is written as Fu Nu Diyu। अब इन दोनों में आप देखो कि सिर्फ also कॉमन आ रहा है यहाँ पे, also, तो और वर्ड देखो क्या आ रहा है, फू, तो मतलब आप also को लिख सकते हो क्या, फू लिख सकते हो also को। ठीक है, क्या लिख सकते हो, फू। इतना हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप देखो कि जो लास्ट सेंटेंस था और सेकंड सेंटेंस था, उसमें दोनों में रिस्क कॉमन आ रहा है, रिस्क। ठीक है, तो रिस्क कॉमन आ रहा है,
तो रिस्क का देखो आप क्या लिख सकते हो, रिस्क कॉमन है तो रिस्क वर्ड देखो, जी आई नहीं, नू कॉमन है तो रिस्क को नू लिख सकते हो आप, इसका मतलब रिस्क को नू लिख सकते हो। तो ऊपर में रिस्क का नू आ गया, तो इसका मतलब वेरी का क्या आ जाएगा, वेरी का आ जाएगा आपके पास जी आई। ठीक है, यहाँ तक डन है। अब आप और देखो कि अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हो तो एसोसिएटेड एक वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, एसोसिएटेड। तो इसका मतलब एसोसिएटेड को देख के लिख सकते हो कि इसमें कौन सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपका टी ए कॉमन आएगा एसोसिएटेड में, टी और ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इतना हो गया। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जब आप फर्स्ट सेंटेंस को ऑब्जर्व करोगे, हमारे पास वेरी का आ गया है, हमारे पास रिस्क का आ गया, हमारे पास एसोसिएट का आ गया, तो हमारे पास लार्ज का बचा, तो इसमें जो भी बच गया वो लार्ज होगा अब। ठीक है, तो लार्ज का इसका मतलब हो गया आपका, यहाँ पर एक ही वर्ड बचा था जो था आपका रो, आर ओ, तो रो हो गया लार्ज का। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में आपने रिस्क का पता लगा लिया, आपने वेरी का पता लगा लिया, आपने इसका पता लगा लिया। ठीक है, तो लो बचा हुआ है, तो लो आपका हो गया यहाँ, लो आपका हो जाएगा जो बचा होगा उसमें से, लो आपका हो गया एस ई, क्योंकि एस ई बचा था सिर्फ। ठीक है, तो आपके ये ऑलमोस्ट सारे अब हो गए हैं। ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट सारे आपने निकाल लिए। यहाँ पे एसोसिएटेड भी हो गया आपका, ऑल इज हो गया, ऑल्सो हो गया, एसोसिएटेड हो गया, दैट रह गया। तो इसमें कौन सा बचता है, बस वो वर्ड, वो दैट के इक्वल हो जाएगा, देख लो। ठीक है, वो दैट के इक्वल हो जाएगा। जैसे आपने इज का तो आपका मी आ गया, ठीक है, ऑल्सो का आपका आ गया फू, और आपका एसोसिएटेड का आ गया टा, तो पो बच गया, तो दैट का हो जाएगा पो। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें आपका रिस्क का भी हो गया और ऑल्सो का भी हो गया, इनहेरेंट डैमेजिंग का रह गया, तो इनहेरेंट इनहेरेंट डैमेजिंग को लिख लो, डैमेजिंग, इनहेरेंट डैमेजिंग लिख लो, इसका आएगा आपका डी और यू, हमें पता नहीं है अब इसके अलावा इसका क्या बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिस्क ऑल्सो लार्ज। तो रिस्क का आपका क्या है, आपको रिस्क ऑल्सो लार्ज का पता लगाना है, रिस्क ऑल्सो लार्ज का पता लगाना है। तो आपका रिस्क का क्या है, रिस्क का आपका है, देखो इधर रिस्क का है आपका नू, तो नू लिख दो। ऑल्सो का आपका है क्या, फू, तो फू लिख दो। और लार्ज का आपका है रो, तो नू फोरो, नू फोरो, नू फोरो है नहीं, फूनो रो है, फू नू रो, तो सेम ही बात है, तो इसका आंसर आपका आ गया ये फूनो रो डी। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमें इसका ये जो पैसेज है अब ये करते हैं हम, अब इसके इसके पास जो पैसेज पे आते हैं। ठीक है, so let's read the passage over here. The passage is like, Aristo- aristocratic government rules itself by limiting too narrowly the circle within which power is confined. ठीक है, जो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने आप को इसलिए खराब कर लेती है क्योंकि वो लिमिट करती लेती है, एक सर्कल, नैरो सर्कल बना लेती है जहाँ पे पावर चलती है, कुछ ही लोगों के बीच में सीमित रहती है वो पावर। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। Oligarchic government ruins itself by incautious scramble for immediate wealth। मतलब oligarchic government जो है वो जल्दी से अमीर होना चाहती है, वो इसलिए रूल कर लेती है अपने को। बट इवन डेमोक्रेसी ruins itself by excess of democracy। डेमोक्रेसी भी अपने आप को खराब कर लेती है excess of democracy से। Its basic principle is the equal right of all to hold the office and determine public policy। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी को इक्वल राइट दिया जाता है ताकि वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सके और पॉलिसी के बारे में डिसीजन ले सके। दैट इज एट फर्स्ट ग्लांस अ डिलाइटफुल अरेंजमेंट, इट बिकम्स डिजास्टर्स बिकॉज द पीपल आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड बाय एजुकेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट रूलर्स एंड द वाइजेस्ट कोर्सेज। अब डेमोक्रेसी में तो क्या हो जाता है कि जो लोगों ने चूज किया वो ही रूल बनाएगा आपके लिए, पर जो जरूरी नहीं है ना, जो लोग इतने ज्यादा समझदार हों एक कंट्री के अंदर कि जिस आदमी को चूज कर रहे हैं वो ठीक ही हो। ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी खराब हो सकती है। ठीक है, to select the best ruler and the wisest courses. The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. ठीक है,
सच अ डेमोक्रेसी इज टायरनी और ऑटोक्रेसी, ये प्लेटो ने कहा है। तो अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द गिवन पैसेज? ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा तो ये कहीं नहीं कह रहा कि ह्यूमन सोसाइटी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ऐसे कह रहा है कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, अगर वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा वो चीज़ अवेलेबल होती है, ज़्यादा एक ही चीज़ के ऊपर अगर फोकस दिया जाता रहता है तो वो खराब हो जाती है, कैसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड टू डिटोरिएट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। हाँ, इसको कह सकते हो, सही हो सकता है। अभी इसको रोक लेते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर अ परफेक्ट फंक्शन एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, ऐसा कहीं नहीं कह रहा है ये। ठीक है, ऐसा बात नहीं कर रहा है एजुकेशन से कि डेमोक्रेसी आएगी नहीं आएगी। ये कह रहा है कि लोग हो सकता है एजुकेटेड ना हो ठीक से, अपना लीडर चूज करने जो उन्होंने चूज किया है वो डेमोक्रेसी में, मतलब वो रूल बना रहा है, और वो आदमी खुद ही ठीक ना हो। ये बात थी। हैविंग अ गवर्नमेंट इज नेसेसरी इवन बिकॉज टेरनरी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा है। ये बस ये कह रहा है कि अगर किसी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है, अगर उसको बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस करेगी तो वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आंसर सिर्फ बी बन पाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा एंड होता है। ठीक है, दिस असाइनमेंट टेस्ट 13 सॉल्यूशन हैज बीन एंडेड। सो फ्रॉम दिस ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन आपका सिलॉफ हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इससे आपके 12 से 11 क्वेश्चंस आते हैं इसलिए एग्जाम में। तो आप क्या करो कि जो इसके असाइनमेंट मैंने प्रोवाइड करा है उसको रिवाइज कर लो, जो पीवाईक्यू के सोल्यूशन आपको इन सभी के दे दिए गए हैं ईयर वाइज, आप उनको कर लीजिए, और जो इसके आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं इसी चैनल पे उनको कर लीजिए। उन लेक्चर्स में भी क्या है ना कि क्वेश्चंस के थ्रू ही सॉल्व कराया गया, आपको 15 टू 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे कि अगर आप एक टॉपिक को देखोगे तो उस पर आपको हमने 40 टू 50 क्वेश्चन करा दिए हैं ओवरऑल मिला के। तो उससे क्या होगा ना कि देखो, एक तो आपका जब आपने लेक्चर लिया तो हमने आपको 15 टू 20 क्वेश्चन वहाँ करा दिए, फिर आपके पीवाईक्यू में करा दिए आपको क्वेश्चन कम से कम, टोटल मिला के अगर ऑन एन एवरेज हर ईयर के आप 3 या 4 क्वेश्चन भी मानते हो तो 5 साल के मिलोगे तो 15 क्वेश्चन वो हो गए। फिर ये आपका असाइनमेंट हो गया। ठीक है, तो टोटल मिला के हर टॉपिक के आपको 30 40 50 क्वेश्चन हो गए हैं। 30, आप एवरेज मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आप उनको रिवाइज करते रहेंगे तो आपका कंसेप्ट और ब्रशअप हो जाएगा, फिर आपका आसानी से पेपर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास खुद के पास क्वेश्चन है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनमें से। ठीक है, विद दिस वी वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। कीप स्टडिंग हार्ड। ओके, अब कल हम क्या करेंगे कि जो पीवाईक्यू की थीम्स है एनवायरनमेंट की, उसको लिंक करके जो हमने कुछ करंट के टॉपिक्स को प्रिपेयर किया है वो टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लेंगे। पहले आपको क्वेश्चन दे देंगे असाइनमेंट की फॉर्म में, फिर वीडियो डिस्कशन कर लेंगे। With this, we would like to end this. Thank you so much. Have a great time. Keep working hard. Success is surely yours.